Good morning, students. So, before starting today's topic, let's recall the things which we have learned in the last lecture. In the last lecture, beta, we had discussed the water conservation methods and the second thing about wildlife and vegetation. So, if we talk about the water, yes, we know very well that water is an important resource now. It is very precious for us because we cannot survive without water, and in many purposes we use water. And the second thing, in the last lecture we have learnt about the methods. By adopting those methods we can conserve the water, and in that first we have learnt that by growing more and more trees, more and more vegetation, we can conserve the water. And the second thing, rainwater harvesting method also we have learned. And the next thing, dripping or sprinkles irrigation also we have learned. And the next thing, that these industrial influence also after treatment runoff in the river water na. So by all these methods we can conserve the water. These all things we have learned. And the next thing we have discussed about vegetation and wildlife also. So if we talk about the vegetation, so in vegetation we can include all trees and plants, flowers. And if we talk about the uses of vegetation, then from vegetation we get paper, means our paper which from which we made the book and notebooks. It also get from the vegetation. Second, many medicinal plants we get from vegetation. And the next thing, fruits, shelters, terpentine oils, latex, many more things we get from vegetation. And if we talk about the wildlife, then milk first, though meat we get from animals. And the second thing, the hides, okay, we get from uh, animals. And the next thing, these animals work as a decomposer, scavenger, because in that we have learned the example of vulture na. Microorganism also, they means they helped us na. They make balance in the ecosystem. And in the last lecture we have learned about biosphere also and the ecosystem also. If we talk about biosphere, so biosphere is a narrow zone where all three sphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere interact with each other, because we cannot survive only in water, only in air or only on land. We need all things na, means land, water, air for survival. So where these all three are interact, जहाँ पर तीनों मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, बायोस्फीयर. अब ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है इसको क्या बोलते हैं, ecosystem. So ecosystem is the life supporting system where all living things are found. Okay, so all these things we have learned. So today we will discuss the distribution of vegetation, and in that the 4 types of vegetation are given in your book. There are many more types also, but in now you are in 8th class, so only 4 types are there. In 9th or in 10th we will discuss the more types. So first, so let's start today's topic. Distribution of natural vegetation. Major vegetation types of world are, first, forest. सबसे पहले forest areas. If we talk about the forest vegetation, these type of vegetation found on those areas where heavy rainfall, more moisture. And in this forest का नाम लेते ही हमारे माइंड में क्या आता है, एकदम से कि लंबे लंबे ट्रीज होंगे, बहुत डेंस ट्रीज होंगे. ठीक है, तो उस टाइप की जो वेजिटेशन होती है, मीन्स फॉरेस्ट टाइप वेजिटेशन में बहुत डेंस टाइप लॉन्ग साइज ट्रीज आते हैं, हैवी रेनफॉल एरियाज होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पर. सो सी एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, अमेंडमेंट ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर सप्लाई. मीन्स इफ यू टॉक अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फॉरेस्ट वेजिटेशन, सो अमेंडमेंट वेजिटेशन होती है, बहुत प्लेंटी ऑफ वेजिटेशन होती है, और साथ में वाटर सप्लाई भी बहुत अमेंडेंट होते हैं, बिकॉज ड्यू टू हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल होगा तो वाटर अपने आप ही मिलेगा इस एरिया में. एंड द सेकेंड थिंग, ग्रासलैंड. अब ग्रासलैंड से हमारे माइंड में क्या आता है, ग्रासेस ना, नो. ग्रासेस के साथ साथ में क्या आएगा, हमारे यहाँ पर ट्रीज भी होते हैं, बट ट्रीज की जो साइज है वो लेस होगा इन कंपैरिजन टू फॉरेस्ट वेजिटेशन. कि जो फॉरेस्ट वेजिटेशन होते हैं उसमें लॉन्ग साइज के जो ट्रीज मिलते हैं, जबकि ग्रासलैंड में मीडियम साइज के ट्रीज मिलेंगे. ओके, सो इन दिस ग्रासलैंड the moisture and the rainfall decreases. मीन जो मॉइस्चर है, जो रेनफॉल, वो डिक्रीज हो जाता है. ओके, इन कंपैरिजन टू दिस, इसमें बहुत हैवी होता है, इसमें हम बिल्कुल लो नहीं बोल सकते, बट इसके कंपैरिजन में
फॉरेस्ट वेजिटेशन के कंपैरिजन में यहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम होता है, मीन्स मीडियम टाइप का लगा लो आप यहाँ पर। और दूसरी चीज क्या है, साइज एंड डेंसिटी ऑफ ट्रीज ऑल्सो डिक्रीजेस, कि यहाँ पर साइज ट्रीज का बहुत लॉन्ग होता है। सी ऐसे कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट एरियाज की, तो फॉरेस्ट एरियाज में साइज ये हो गया। और डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन मीन्स जो ट्रीज हैं बहुत डेंस है, एक दूसरे के पास पास है। इफ यू टॉक अबाउट द ग्रास लैंड, सो ग्रास लैंड में जो साइज है ट्रीज का वो थोड़ा सा कम होगा इन कंपैरिजन टू दिस। और जो यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो इतनी डेंस नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप के वेजिटेशन है। सो इट इज अंडरस्टूड कि जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर जो साइज है ट्रीज का वो लॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू दिस। ग्रासलैंड में जो साइज है ट्रीज का वो कम होता है और जो डेंसिटी है वो कम होती है, इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पर बिल्कुल पास पास में ट्रीज होंगे और यहाँ पर इतनी पास नहीं होंगे। सो दिस इज द सेकेंड करेक्टरिस्टिक। नाउ नेक्स्ट, लो रेनफॉल। अब ग्रासलैंड जो एरियाज होते हैं वहाँ पे इन कंपैरिजन टू फॉरेस्ट एरिया लो रेनफॉल होता है। अब ड्यू टू दैट लो रेनफॉल जो वहाँ पर ट्रीज कैसे मिलते हैं, शॉर्ट मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द ग्रासेस मिलती है। सो दीज टू टाइप अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट थर्ड, स्क्रब्स। अब स्क्रब्स की हम बात करते हैं तो स्क्रब्स जो वेजिटेशन होती है, these type of vegetation found in the dry regions, or if we talk about our country, so we can take the example of Rajasthan, means राजस्थान जहाँ पे बहुत लो रेनफॉल होता है, बहुत लेस रेनफॉल होता है, उस एरिया में क्या मिलती है हमारी स्क्रब्स। सो ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, ड्राई रीजन होते हैं, वहां पर क्या मिलती है हमारे स्क्रब्स टाइप वेजिटेशन मिलती है। अब इसमें क्या आती है हमारी थॉर्नी स्क्रब्स आती हैं, स्क्रब्स आती हैं, ग्रो डीप रूट्स एंड वैक्सी लीव्स। अब ऐसी वेजिटेशन होते हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ, जैसे आप कैक्टस का एग्जांपल ले सकते हो, जिनकी जो रूट्स है वो बहुत डीप होती है, अंदर तक होते हैं, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें, ठीक है, लंबे टाइम तक। और दूसरे कि जिनको जो लीव्स होते हैं वैक्सी होते हैं, जैसे कैक्टस है, कैक्टस का जो लीव्स होता है मोटा मोटा होता है, उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, जैसे मोटा कैसे, जैसे हमारे एलोवेरा का जो लीव होता है उस टाइप से होता है ये, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, टुंड्रा। नेक्स्ट टाइप टुंड्रा। अब टुंड्रा वेजिटेशन, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द कोल्ड रीजन, दोज एरियाज मोस्टली कवर्ड बाय स्नो, और वी कैन से इन द पोलर रीजन। सी दिस इज आवर अर्थ, ये जो कॉर्नर में जो पोलर रीजन है, इन 6th और 7th क्लास वी हैव लर्नड अबाउट दीज, कि जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पर क्या मिलती है, टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है। और इसमें मोस्ट ऑफ दी क्या मिलती है, जो मॉसीज होती है, जो लीचन होती है, अभी ये क्या होते हैं कि जो काई होती है, ग्रीन ग्रीन जो काई दिखती है ना, कई बार जो हमारा पानी का टैंक होता है बना होता है उसके नीचे भी बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है पूरा टाइम वो कवर्ड रहता है। तो ऐसे जो एरियाज यहाँ पर पूरा टाइम जो स्नो से कवर्ड रहते हैं, जहाँ पे गीला गीला रहता है, जो वेटलैंड होती है, वहाँ पर किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है, टुंड्रा। ओके, सो दिस 4 types we have discussed now: forest, grassland, scrubs and tundra. Now if you talk about the types of forest, so here 2 types of forest are given: evergreen and deciduous. evergreen नाम से ही पता है कि जो हमेशा हरे भरे दिखे, और deciduous कि जो एक पार्टिकुलर सीजन में अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द एवरग्रीन, सो बेटा these type of forests do not shed their leaves in a particular season. अब क्या है कि जो एवरग्रीन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैवी रेनफॉल होते हैं उन एरियाज में मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी में ट्रीज होते हैं, बहुत डेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं। अब कुछ ट्रीज किसी मीन्स जैसे जनवरी में कुछ ने अपने लीव्स को शेड किया, कुछ ने फेब में किया, कुछ ने मार्च में किया, तो वो रोटेशन में होता तो पता नहीं चलता, मीन्स वो पूरा ईयर क्या दिखते हैं, हरे भरे दिखते हैं। बट जो डेसिडिशियस ट्रीज हैं, ये सारे के सारे जो फॉरेस्ट जो इसमें आते हैं, दे शेड देयर लीव्स इन द पार्टिकुलर सीजन। जैसे जो ऑटोमन सीजन आता है उसमें अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सारे के सारे ट्रीज कैसे दिखते हैं, विदाउट लीव्स, सूखे सूखे लगते हैं। सो एवरग्रीन मीन्स लुक्स ग्रीन, मीन्स एवर, and deciduous they shed their leaves in a particular season. And if we talk about the deciduous forest, they also subdivided into 2 parts: first tropical deciduous and the second is temperate deciduous. Now tropical and temperate, see first this zone, different zone on the earth we have learnt in 6th class that there are 3 zone: tropical, temperate and polar region or frigid zone you can say.
So if we talk about this equator divided our earth into two equal part ना, 0 डिग्री. अब 0 डिग्री से जब हम यहाँ तक चलते हैं, साउदर्न में 23.5 और नॉर्दर्न में 23.5 मीन्स दिस पार्ट, ये हमारा क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है. ट्रॉपिकल रीजन मीन्स यू कैन से हॉट रीजन, बिकॉज हियर दिस एरिया, दिस रीजन रिसीव डायरेक्ट सनरेज. ओके, ये डायरेक्ट सनरेज को करता है. बट आप देखो यहाँ पे जो इक्वेटर है, मैंने इसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल किया, क्योंकि जो इक्वेटर के साथ साथ में क्या बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट बनते हैं. और इससे आगे नेक्स्ट यहाँ पर ये जो मैंने पिंक ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज tropical deciduous forest. Here also in northern hemisphere, in southern hemisphere also. And the next temperate deciduous means ये temperate zone में मिलेंगे. And after this 23.5 to 66.5 here in this, ये क्या होता है, टेम्परेट होता है. मीन्स ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है, वार्म होते हैं ना, तो यहाँ पर ठंड होती है ज़्यादा ना गर्मी होती है. तो यहाँ पर टेम्परेट जोन में टेम्परेट डेसिडिशियस फॉरेस्ट मिलते हैं. ओके, सो अप टू हियर इट इज क्लियर. So what we have learned today, the type of vegetation, that there are 4 types of vegetation. And the next thing, forest, if we divided forest, so forest into 2 parts, evergreen and deciduous. Deciduous also divided into 2 parts, means temperate and tropical deciduous forest. Okay beta, so this is for today. So if you want to take screenshot, you can take. Tomorrow we will discuss how we can conserve this wildlife and vegetation. Okay.